So I'll be coming back to the chat after like 3 MCQs. And then if you have any questions, just let me know. So, Bismillahirrahmanirrahim. Pehle shuru karte hain. Question 1. What could cause a reduction in the factors of production in a country? We know there are 4 factors of production, which are land, labor, capital, and enterprise. So a reduction would be a reduction in any of these. Let's look at a decrease in the population. Well, we already have our correct answer because this would lead to a labor shortage in the long run. But let's look at B. The discovery of new resources. This is wrong because this would lead to an advancement in the factors of production. This would lead to more factors of production. Total opposite of what we want. C, an advancement in technology. This is again an advancement in capital. So no, the exact opposite of what we want. And D, an increase in the unemployment rate, just irrelevant. This has no correlation to your factors of production at all. Irrelevant. Only there to waste your time. Let's look at question 2. A government reduces social security spending by $10 billion in order to increase defense spending by $10 billion. Sounds like the US. What is this an example of? Let's see. A, expansionary fiscal policy. We can rule this out. Why? Because expansionary fiscal policy, you have a tax reduction and a government spending increase. So you have like neither of those happening here. Why? There's no mention about tax here. And then there's no mention about government spending increasing. If you look at it, we're spending the same 10 billion that we were before. So no increase. Market forces, not at all. Those are demand and supply. Price stability, again, not at all relevant here. This is a reallocation of our resources. So this is option D. Let's move down. The diagram shows an economy located at point X on an initial possibility curve, PPC1. The government would like to move to point Y on PPC2. So this is a rightward shift on the PPC. What causes a rightward shift? Well, when you have more resources than you did originally, and you have an increase in your FOPs, your factors of production. So let's look at what gets that. Which policy is likely to achieve this outcome? Cut indirect taxes on consumer goods. Okay, so I want you to notice one more thing here. उन्होंने ये किया कि उन्होंने X अगर यहाँ रखा था, उन्होंने Y को थोड़ा सा consumer goods के पास कर दिया, ताकि वो जब आपको consumer goods वाली option दे, तो you'll get confused on the consumer goods option. What you need to realize is when you cut indirect taxes, prices become lower, spending increases, but has no effect on the PPC. No effect on PPC. Encourage the immigration of skilled labor into the country. C, train the unemployed. And D, transfer resources from the production of capital goods to the production of consumer goods. This is wrong because you have no new resources. This is just a reallocation of resources. Train the unemployed to help them get jobs and encouraging the immigration of skilled labor. Now, these two are ones where they'll get you. You become confused because you look at the unemployed and you'll be like, yeah, these people aren't labor right now. If we train them, we can help them get jobs and our labor increases. But what I want you to know is unemployed people already count as labor. So that means you have no actual increase in your factors of production, specifically the labor factor of production. So this is wrong as well. And thus you have B, where you have an immigration of skilled labor into the country, where you have labor actively increasing. I'll be coming to the chat now. So if anyone has any questions, feel free to ask. Okay, question 1, why not D, as it reduces labor? An increase in the unemployment rate. Okay, so this is something I just mentioned in question 3. If there's an increase in the unemployment rate, your labor is still the same.
It's just the fact that some people are now employed versus unemployed. But your labor always constitutes both unemployed and employed people. Insofar as you don't have an actual increase in the number of people, you have no change in the labor, regardless of whether they're unemployed or employed. I hope that answers your question. So I can write this. Labor stays constant. I'll write that here. 29 out of 30 आ गए इसमें. You should be happy. So this is an easy paper. When I get to the 17, I'll definitely let you know. Okay, so moving on to the next three questions. Question 4. What is likely to reduce the price of an airline's flights? Okay, let's see. Again, we have our option at A. This is the correct one, but why are the other ones wrong? Increased demands for flight. Okay. What do we remember about price and demand? When demands increase, prices increase as well. And then demands fall back. So what is likely to reduce the price? An increase in demand would always increase the price. So this is wrong. Increased fuel prices, आपकी cost बढ़ जाएगी, तो आपकी price बढ़ जाएगी. So wrong. Increased wages, again, cost बढ़ जाएगी. So this is not it either. It is A. Increased competition from new airlines. Because when you have increased competition, that essentially means I need to compete with another for my consumers. So if I offer them lower prices, I'm going to get more demand on my side. Question 5 shows the market for a good. If the current disequilibrium price is at P1, what will need to happen to adjust to the market equilibrium at point Z? So right now we're here where we have, excuse that line, sorry. This is our quantity demanded. And then this is our quantity supplied. As you can see, we have a surplus here because quantity supplied is to the right of quantity demanded. So we have more quantity supplied than demanded. That means that, let's see, what do we need to do to get to Z? A contraction in supply from Y to Z and an extension in demand from X to Z. That is our correct option, but why are the other ones wrong? Let's see. The demand curve will need to shift to the right from X to Y. So what they're saying is this demand curve shifts here. लेकिन अगर आप देखेंगे वो यहाँ shift कर जाता है, you don't go to point Z at all. You move to an equilibrium at point Y. So this is wrong. You don't get to Z. No Z. The government will need to set a minimum price at P1. अगर minimum price को रख देते हैं, आपकी essentially और ज़्यादा मसला पड़ेगा. So you will never get to Z. आप कभी नीचे नहीं जा पाएंगे. No. Z. Again, the curve will need to shift. Supply curve will need to shift from the supply curve will shift from left to X. अगर हम X पे भी move कर जाते हैं, again will not meet at Z at all. So no Z again. So इन तीनों का एक ही बात है कि आप Z पे पहुंचोगे नहीं कभी, and you need to move to Z. Which combination of changes in price and quantity demanded would result in a price elasticity of negative 0.01? PED ka formula used to be percentage change in quantity over, demanded over percentage change in price. Let's see. अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो इनका तो आंसर पॉजिटिव आएगा. Wrong. Answer positive. Answer is positive. So wrong. Let's look at this. Negative 1 over 10 is equal to negative 0.1. So this is our correct option. And then this answer is positive. Answer is positive. And same here. So wrong. We have our option B. Now, again, I'll be moving back to the meeting. And if you have any questions, let's get them out. If you have any questions, ask away.
I'll be trying to hold more classes every day now at the same time. So I will let you know on my Instagram or through the WhatsApp community as well. So I'll be trying to solve as many papers as I can for you guys and solve and make sure you guys have your concepts revised as much as I can. Okay, so I'm assuming no other questions for now. So let's move on. What is the key feature of the market economic system? Only demand and supply, no bad government, no government intervention at all. Okay, so both the public and private sectors play. Nope, इसको वहीं cut out कर देना, पे public sector आ गया. B, competition between firms results in lower price and more choice. Exactly, this is why I love the market economic system. That is the correct option. The government always intervenes. गवर्नमेंट आ ही नहीं सकती मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में. जहां गवर्नमेंट आ गई, सेंट्रल प्लानिंग आ गई या पब्लिक, ये तीन लफ्ज भी आपने देख लेना काटते वहां पे. द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर गलत. मार्केट में पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप होती है, पब्लिक टू प्राइवेट, टू कर देते हैं इसे, टू प्राइवेट एसेट ट्रांसफर होता है. Some private firms in a free market allocate resources inefficiently by causing external costs. External costs hoti hain. External costs are basically costs that are cost to the person that is not even consuming the product directly. So these are costs like passive smoking. अगर मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा है, मैं उसके साथ बैठा हूँ, उसे पर्सनल कॉस्ट तो हो रही है, लेकिन उसकी एक एक्सटर्नल कॉस्ट मुझे भी हो रही है क्योंकि मैं पैसिवली स्मोक इनहेल कर रहा हूँ, तो मुझे भी लंग्स का मसला होगा. Cost to a person who doesn't even directly consume the product. What economic concept does this describe? A, opportunity cost? No. We know opportunity cost is the cost for one choice over the other. यहाँ पे कोई choice की बात नहीं हो रही. Diseconomies of scale, not at all. That is when your average total cost rises as your scale of production rises. Market failure, yes, indeed. This is a market failure. क्योंकि आपकी एक external cost produce हो रही है जो दो लोगों को harm कर रही है. That is when a market failure occurs. Specialization, बिल्कुल भी नहीं. Specialization तो यहाँ पे बैठती ही नहीं है. Irrelevant. ये काम करते हैं. They give you absolutely irrelevant questions or options to just waste your time. A government gives farmers a subsidy of $5 per kilo to supply food on the open market, where X is the original equilibrium position. The effect is shown in the diagram below. Okay, so we have X here. We have one supply curve here, one supply curve here. What will be the new pricing quantity supplied? Okay, I want you guys to note one thing. This is pretty simple. And a rule you have to remember, ye bas yaad rakhein. Okay, when you're giving a subsidy, supply curve shifts right. Because आपकी cost reduce हो जाती है. Okay? So that means अगर वो S3 पे कुछ भी हमें दे रहे हैं ना, तो वो तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि S3 तो बैठ ही नहीं सकता यहाँ पे. हमने देखना ही सिर्फ S2 है. So let's see. What will be the new equilibrium price and quantity? Equilibrium price $8. $8 and quantity supplied 20. That is not it, because this doesn't fall on the equilibrium point. Not equilibrium. Equilibrium. 11 and 25. Let's see. 11 and 25. This is 11. And this is 25. This is our correct option because this is on, let's say, point P. On point P. Why is C wrong? Let's see. 13 and 28 original hai. And then 18 and 10 is on S3. So wrong. On S3. Okay, time for questions again. After papers, I have questions regarding topics. I will be here for sure. You can ask them. मैं अभी explain कर दूंगा paper के बाद.
ये IGCSE का पेपर है फेब मार्च का। लेकिन डोंट वरी, दोनों सेम होते हैं वो लेवल्स IGCSE, कोई इनका कोई भी ना कॉन्सेप्ट्स का इशू होता है, ना पेपर पैटर्न का मसला होता है, ना टॉपिक्स, सारे सेम होते हैं। तो आप IGCSE का करें वो लेवल का करें, इजी सीन है। अकाउंटिंग का क्या करे यार, मैंने ना अकाउंटिंग कभी ली नहीं, तो बाद में बताऊंगा आई थिंक। Why is a central bank important to producers? For the collection of corporation tax, not the role. इनका काम नहीं होता। To maintain price stability, yes indeed ये इनका काम है। Why and how? ये लोग प्राइस स्टेबिलिटी कंट्रोल करते हैं थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज by either expanding the money supply and lowering the interest rate ताकि लोग सेव कम करें और स्पेंड ज्यादा करें, या कंट्रैक्शनरी में ये मनी सप्लाई कम कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर देते हैं ताकि लोग सेव ज्यादा करें और स्पेंड कम करें। तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। फॉर द प्रोविजन ऑफ लोन फैसिलिटीज एंड फॉर द प्रोविजन ऑफ सेविंग अकाउंट्स, ये दोनों चीजें जो है ना, ये कमर्शियल बैंक्स करती हैं। कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स आपके होते हैं जैसे HPL हो गया, लाइट बैंक हो गया, इनमें आप अपने सेविंग अकाउंट्स रखते हो, डिफॉल्ट अकाउंट्स रखते हो, इनसे ही आप जाके लोन्स लेते हो। ये आप सेंट्रल बैंक से नहीं जाके करते कभी। आई डोंट थिंक आप में से कोई कभी सेंट्रल बैंक जाके अम्मी अब्बू के पैसे डिपॉजिट या लेने गया होगा। What might have caused savings to rise faster than incomes in a particular year? Let's see. Incomes increased at a greater rate than inflation, yes. But why are the others wrong? Increased consumer confidence leading to increased consumer spending. I want you to notice यहाँ पे savings rise हो रही हैं, तो यहाँ पे तो saving कम होगी। Saving कम हो जाएगी because people spend more. The spending increased. तो ये तो contradictory है। Interest rates fall, leading to a fall in return on savings, तो savings fall करेंगी। दोबारा गलत है। Rate of income tax increased. Rate of income tax increase हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपका रियल इनकम ही कम हो जाएगी। रियल इनकम कम हो जाएगी क्योंकि रियल डिस्पोजेबल इनकम सॉरी कम हो जाएगी। तो आपका पैसा ही जब कम आएगा, उसमें से फिर आप खाना बिजली के सारे खर्चे निकाल लोगे, उसके बाद सेविंग आपकी कम ही रह जाएगी, सेविंग राइज नहीं करेगी। तो अगेन दिस इज रॉन्ग एंड सेविंग डिक्रीजेस। इनकम इंक्रीज एट अ ग्रेटर रेट देन इन्फ्लेशन, तो मतलब आपकी रियल इनकम इंक्रीज कर गई है। इनकम इंक्रीज में ज्यादा अमीर हो गया हूं तो मैं ज्यादा सेव कर सकता हूँ। On average, doctors earn more than bus drivers. Yes, they do. What change would be likely to reduce the earning gaps between doctors and bus drivers? A decrease in the profits earned by bus companies? No. Oh, कम पे करना शुरू कर देंगे उन्हें। A decrease in the qualifications needed to be a doctor? Yes. I explain why. An increase in demand for medical care? No, this would increase doctor pay. Docs pay. An increase in the number of people driving टेस्ट पास कर रहे होंगे, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाएगी ड्राइवर्स के लिए, तो आपकी वेजेस फॉल कर देंगी। कॉर्पोरेशंस आर हॉरिबल गाइस, रिमेंबर दैट। A decrease in the qualifications needed to be a doctor? Yes, क्योंकि फिर आपके डॉक्टर की सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई इंक्रीजेस, वेजेस फॉल, तो आपकी इनकम डिस्पैरिटी कम हो जाएगी। ओके गाइस, लेट्स सी एनी मोर क्वेश्चंस। 11 दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। ओके ओके, what might have caused savings to rise faster than income? तो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लेशन का सेविंग से क्या रिलेशन है? ओके, इन्फ्लेशन का सेविंग से ये रिलेशन है कि अगर मेरे लिए इन पर्टिकुलर ये चीजें ज्यादा महंगी हो गई हैं, जैसे लेट्स से मैं एक महीने में न्यूटेला खरीदता था और माइलो के 2 डब्बे खरीदता था और मेरे पास बच जाते थे 1000 रुपए। अगर अब उन तीनों चीजों की मिला के प्राइस 300 बढ़ गई है, तो मेरे अब 300 रुपए ज्यादा लगेंगे इन्फ्लेशन की वजह से, तो मेरी सेविंग्स कम हो जाएंगी, तो मेरे अब 700 सेव होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब मुझे अगर इनकम ज्यादा मिलना शुरू हो जाती है, चीजों की प्राइस 300 से बढ़ी है, मेरी इनकम अब बढ़ जाती है लेट्स से 600 से, तो जहां मेरे पास पहले 1000 बच्चे थे, उसके बाद 700 बच रहे थे, अब वो 600 उसमें ऐड हो जाएगा और मेरे पास और बचना शुरू हो जाएंगे।
तो वहां से बात आती है कि अगर आपकी इनकम राइज कर रही है फास्टर देन द इन्फ्लेशन, अगर 3% इन्फ्लेशन, आपकी इनकम 10% आ रही है, इवन 4% इंक्रीज हुई है, तो आपके पास सेविंग्स ज्यादा रहेंगी क्योंकि आपकी रियल इनकम एक्चुअली इंक्रीज कर गई है। रियल इनकम होती है आपकी, रियल इनकम इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। जब आपकी रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो मतलब मेरे पास एक्चुअली पैसा बस ज्यादा आ जाएगा, पैसा ज्यादा आ जाएगा तो मेरे पास सेविंग भी ज्यादा हो जाएगी और मैं इन्फ्लेशन को भी टारगेट कर पाऊंगा, इन्फ्लेशन से भी इफेक्ट नहीं होगा, तो मेरी सेविंग्स इंक्रीज करेंगी तब। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन मीन्स कि अगर मेरी इनकम एक टाइम पे एक साल में थी 1,000 रुपए, ठीक है, और वो 1,000 रुपए उस वक्त बन रहे थे लेट्स से $10, इन्फ्लेशन हो गई है, मेरी मनी की वैल्यू गिर गई है, अब वो बन रही है कह लो $8 1,000 रुपए, लेकिन मेरे बॉस ने फिर भी मेरी इनकम बढ़ा दी है, लेकिन वो एडजस्ट नहीं की उसने इन्फ्लेशन के लिए। चीजें अगर बढ़ गई हैं लेट्स से 20% से, मेरा माइलो का डब्बा 20% से बढ़ गया है, लेकिन मेरी इनकम सिर्फ 10% से बढ़ी है, तो अभी भी मेरे लिए वो माइलो का डब्बा ज्यादा महंगा पड़ेगा पहले से। दैट मीन्स मेरी इनकम जो है उस वक्त सही से एडजस्टेड नहीं है इन्फ्लेशन के लिए, वो इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं कर रही, कैंसिल आउट नहीं कर रही। दैट इज वेयर द पॉइंट कम्स इन कि अगर आपकी इनकम आपकी इन्फ्लेशन से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है तो आप उसको एक्चुअली टारगेट कर सकते हो और आप अपने आप को सेफ रख सकते हो और इवन सेविंग्स इंक्रीज कर सकते हो। इज इट क्लियर ना अली? Perfect. In 13, what's the difference between C and D? अच्छा 13 पे अब हम आए, ओके। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? ऐसे तो बस ड्राइवर्स डॉक्टर बन जाएंगे अगर आप क्वालिफिकेशंस डिक्रीज कर देते हो। यस, दैट इज द एक्चुअल असम्पशन दे वांट यू टू मेक कि हर बंदा अब डॉक्टर बनना शुरू हो जाएगा, तो डॉक्टर का सप्लाई जब बहुत बढ़ जाएगा तो डॉक्टर की वेज गिर जाएगी। दैट इज एग्जैक्टली दिस assumption that they want you to make and that will lead you to the correct answer. 13. A car manufacturer has increased the amount of specialization in its factory. Wow. Which diagram shows the impact for the market on the manufacturer's car? Okay, so looking at four options here, I will note one thing. Amount of specialization, ये है supply side. This is supply relevant. That means जहां पे भी आपको डिमांड में चेंज नजर आ रहा है ना, उसे तो वहां ही काट दो, डिमांड में तो चेंज आना ही नहीं। देन स्पेशलाइजेशन हो रही है, दैट मीन्स efficient use of resources, use of resources, that means आपकी cost reduces, cost कम हो जाएगी, तो दैट मीन्स आपकी सप्लाई शिफ्ट करेगी राइट वर्ड, सप्लाई राइट शिफ्ट। लेट्स सी यहाँ पे सप्लाई किधर राइट शिफ्ट कर रही है, यहाँ पे तो लेफ्ट शिफ्ट मार रही है, तो सी गलत है एंड डी इज द आंसर। सो अयान, यू आर आस्किंग के 13 में सी एंड डी में फर्क क्या है? The difference between C and D is C में S1 is moving backwards to the left, and that is the opposite of what we want actually. We want it to shift to the right, which we can see here, S1, S2. So we have a rightward shift. A group of a group of workers in a firm joins a trade union. What would the union be expected to do? A trade union essentially fights for rights and better working conditions. Better working conditions. What would the union be expected to do? Arrange for labor-saving technology to be introduced? Never. ये तो अपनी पाँव पे कुल्हाड़ा मारेंगे. Discuss safety issues in the workplace with the employer? For sure. क्योंकि this would lead to a better working condition. Lead to this. Ensure job security by promoting the firm. They don't do anything for the firm. Negotiating new contracts with major buyers? Again, this is wrong. Both of these, the trade union does nothing for the firms. Trade union का arch nemesis होता है firm. उन्होंने बस firm को किसी तरह
नीचे रखने अपने पाँव के और वर्कर्स को ऑन टॉप रखना है, तो दे विल डू नथिंग फॉर द फर्म, दे विल डू नथिंग फॉर द फर्म. 15 MCQ. The table shows the output, total fixed cost, and total variable cost of a firm. Okay, what can be concluded from this data? ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा, but we can get through it. Average fixed cost remains the same. Let's see. Average fixed cost हम निकाल लेते हैं. AFC. ये ऑप्शन A है. AFC. Let's see. AFC हम निकालेंगे. Total fixed cost को output से divide करते रहेंगे. तो 1000 over 5 is equal to 200. फिर 1000 over 10 is equal to 100. एंड इसको अगर आप करते जाओगे तो आप देखोगे कि फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूस हो रही है. AFC reduces, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, आउटपुट बढ़े जा रही है. न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बढ़े जा रहा है, तो आपकी वैल्यू कम होती जाएगी. एवरेज टोटल कॉस्ट राइजेस. लेट्स सी. एवरेज टोटल कॉस्ट होगी आपकी AFC प्लस वेरिएबल कॉस्ट. तो एवरेज टोटल कॉस्ट अगर हम लगाएं तो दैट विल बी, लेट्स सी, पहले होगी वो 2000 over 5 will be 400. Then it will be 2000 plus 1000, 3000 over 10, which will be 300. यहां से हमें पता लग गया कि ये भी फॉल कर रही है. This is wrong. ATC false. Average variable cost remains constant. Let's see. Average variable cost हम निकालेंगे total variable cost को divide करके. Let's see. 1000 over 5 is equal to 200. 2000 over 10 is equal to 200. 3000 over 15 will be 200, and 4000 over 20 again 200. तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिमेन सेम एंड टोटल कॉस्ट फॉल्स. नहीं, दिस इज रॉन्ग एज वेल, क्योंकि हमें अपनी करेक्ट ऑप्शन मिल गई है. अगर इस तरह की कैलकुलेशन हैवी हो तो जब आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाए बस उसे सर्कल कर दिया करें, क्योंकि इन पे वैसे ही टाइम लगता है आपका. और आपकी टोटल कॉस्ट यहाँ पे अगर आप वैसे भी देखें तो राइज करी जा रही है. यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे 5000 है. टोटल कॉस्ट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके. We've gone through half the paper. So, okay, if you have any questions, I will just. How would we know it's just supply related? Because it's a manufacturer. Okay, let me see. Let me see. ये question था यहाँ पे. Yes. Amount of specialization increase होगी. Specialization is supply relevant. एक सेकंड, मुझे बता दें. Question 13 की ही बात हो रही है ना इस question में, ज़ैना and Abdul Aleem. I'm assuming you both are asking the same question. Okay. Perfect. हमें पता ऐसे लगेगा कि सप्लाई रेलिवेंट है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन जो होती है ना, स्पेशलाइजेशन अगर मैं बहुत आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, इज बेसिकली एन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इनहेरेंटली जो उसे बेहतर इस्तेमाल कर सकता है. मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे इकॉन में एफिशिएंसी है, मैं इकॉन जानता हूँ, मैं रिसोर्सेज के साथ काम कर सकता हूँ. मुझे आप केमिस्ट्री पढ़ाने बैठा देंगे, मैं आपका भी कॉन्सेप्ट खराब करूंगा, अपना भी कॉन्सेप्ट खराब करूंगा. मेरे दोस्त हैं जो वो कर रहे हैं, और दैट इज, लेट्स से, एक एकेडमी को अगर हम देख लें तो वो स्पेशलाइज करते हैं. कैसे? इकॉन स्पेसिफिक टीचर रखा हुआ है उन्होंने इकॉन के लिए, केमिस्ट्री स्पेसिफिक टीचर रखा हुआ है केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स वाला रखा हुआ है फिजिक्स के लिए. अगर एक ही बंदा होगा जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा, he would need to be insanely talented to know all three subjects well enough to teach it to everyone. उसका एक सब्जेक्ट होगा नॉर्मली जो उसे आता होगा, बाकी तीन में वो सारों को खराब करके रखेगा. तो स्पेशलाइजेशन इज एसेंशियली आपकी एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एंड ये हमेशा मैन्युफैक्चरर करता है, ऑलवेज बाय अ मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर. दिस इज व्हाई इट इज सप्लाई रेलेवेंट. सर एक सर है जो 15 से 16
सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। Damn, मुझे उनकी क्लासेस लेनी पड़ेगी, मैं देखना पड़ेगा ये बंदा स्पेशलाइज कैसे करता है। फिर वो मेरी एग्जांपल पे आएगा ना, दैट मैन हैज टू बी इंसेनली टैलेंटेड। वेल, गॉड ब्लेस हिम यार। Okay, so we've gone through half the paper. Do you guys want to take like एक 5 मिनट की ब्रेक, या कैन वी जस्ट मूव ऑन अगेन? इतने सब्जेक्ट्स हैं जितना हुनैन ज़िया पढ़ा रहा है। ओके, डज एवरीवन एग्री विद सफी वी शुड मूव ऑन, या ब्रेक ले लें? अच्छा हाँ, ए स्टार के लिए कितना एम करना है? सॉरी हाँ, ए स्टार के लिए आई वुड से इन P1 आपका थ्रेशोल्ड मेनली 23-25 बनता है। ये वाला पेपर काफी आसान है, इसका थ्रेशोल्ड मेरे हिसाब से लाइक 25-26 बनेगा। तो आई वुड से यू शुड एम फॉर एटलीस्ट 27-28, 27-29 की रेंज में आपका ए स्टार वाली रेंज आ जाएगी। बट इकोन का ना पेपर काफी आसान होता है P1 का, आई विल से। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स रटे हुए होते हैं आपको, लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस जैसे मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम वाला था, वो जनरली बस उसकी डेफिनेशन अगर आपको आती हो ना तो आपको पता होगा कि क्या होगा। तो यू जस्ट नीड टू नो योर कॉन्सेप्ट्स, इतना मुश्किल नहीं होता। कैलकुलेशन वाले थोड़ा सा तंग करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन वाले ये इतने ज्यादा देते नहीं। अगर देते हैं तो उसका थ्रेशोल्ड वैसे लो हो जाएगा, डोंट वरी। वैसे इफ यू नो योर नोट्स इनफ यू कैन डू वेल। अच्छा, 25 एम करो। 25 का थ्रेशोल्ड बनता है ए का, मैं ये कह रहा हूँ। तो एम फॉर 27-28, उससे ऊपर एम करें। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए आई डोंट हैव ऑल द कॉन्सेप्ट्स के नोट्स कंपाइल्ड। आई विल ट्राई कि मैं जितने कंपाइल कर सकता हूँ कर लूँ, जो भी कंपाइल कर लूँगा आई विल सेंड देम टू यू गाइस, लेकिन अभी के लिए आई डोंट। लेकिन इफ यू हैव एनी वैसे क्वेश्चंस तो डू लेट मी नो। आई थिंक विल मूव ऑन अभी के लिए। Let's see what allows a monopoly to charge a high price for its products and still make a profit. What is a monopoly? Monopoly is one dominant firm, one dominating firm in the market. तो ये बिग बॉस होती है, ये प्राइसेस सेट करती है, ये क्वांटिटी डिसाइड करती है, सारा प्रॉफिट इसका होता है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता उस मार्केट में। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल चाहते हैं इसकी, तो वापडा देखें, के इलेक्ट्रिक देख लें, लाइक पावर प्रोड्यूसर्स देख लें, उनकी नेचुरल मोनोपोलीज होती हैं, क्योंकि वो अकेले होते हैं जो सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उनके अलावा कोई प्रोवाइड नहीं करता इस तरह की एनर्जी चीजें। तो उनके बैरियर्स ऑफ एंट्री भी बहुत हाई होते हैं, आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और उनके सब्सटीट्यूट्स भी कोई नहीं होते उस एरिया में, क्योंकि वो जो बहुत जियोग्राफिकली लोकेटेड होती है चीजें। तो लेट्स सी व्हाट अलाउज अ मोनोपोली चार्ज अ हाई प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स आपके मोनोपोली में होते ही नहीं, क्योंकि मोनोपोली ही एक फर्म है, तो नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स तो नन है। तो ये तो पहले दो फॉल्स हो गए। बैरियर्स टू एंट्री इन दैट इंडस्ट्री हाई होंगे या लो होंगे? अगर लो होते तो इसका तो मतलब है कि बहुत ज्यादा फर्म्स होती हैं उसमें। इफ बैरियर्स वर लो, monopoly would not exist. Monopoly existence gone. So this is wrong. So this is C. जब ना सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होगा और बैरियर ऑफ एंट्री भी हाई होगा, तो कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, तो उनको कोई थ्रेट ही नहीं होगा किसी चीज से, तो वो जो मर्जी करना चाहें वो कर सकते हैं। Which government actions are primarily aimed at achieving international impact? Let's see. Setting a minimum wage, बिल्कुल भी नहीं. This is just wrong. Oh, sorry. Sorry. सेटिंग मिनिमम वेज पे नो ही होना चाहिए, तो अगर यस लिखा हुआ है उसे काट दें, क्योंकि मिनिमम वेज का इंटरनेशनल कोई इम्पैक्ट नहीं होता, वो आपके अपने लोकल लोगों पे ही सारा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। डिप्रिशिएटिंग द एक्सचेंज रेट, यस दिस डेफिनेटली हैज एन इम्पैक्ट, तो इस पे अगर नो लिखा हुआ है तो ये काट दें। डीरेगुलेटिंग इंडस्ट्री जो है उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट इतना नहीं होता, उसका भी ज्यादातर लोकल होता है। इंट्रोड्यूसिंग टैरिफ्स का इंटरनेशनल इम्पैक्ट होता है, तो ये भी सही है।
क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वेज का कोई इफेक्ट नहीं होता, डिप्रिशिएटिंग का इफेक्ट होता है, डीरेगुलेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता इंटरनेशनल पे, एंड टैरिफ्स का होता है। अगर टैरिफ्स लगाओगे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ेगा, फिर कंट्री आपसे गुस्सा कर देगी तुमने मेरे पे टैरिफ लगा दिया, क्यों लगाया है, तो इंटरनेशनल इम्पैक्ट आएगा आपका। गवर्नमेंट एम्स टू encourage stable prices. So they want to stop inflation basically, because inflation can result in a current account deficit on the balance of payments. Personally speaking, मुझे balance of payments कभी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन once I really got to learn, it is genuinely बस basic arithmetic plus minus करना होता है आपने, और कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट है। डेफिसिट का मतलब है कि जितना पैसा आपके मुल्क में आ रहा है उससे ज्यादा बाहर जा रहा है, तो आपका एक इम्पोर्ट पे एक्सपेंडिचर, import expenditure is greater than export revenue, sadly. इसको एक बेहतर तरीका लिखने का ये है, एम आर इज ग्रेटर देन, सॉरी, एम ई is greater than XR. Import expenditure is greater than export revenue. How does a high inflation contribute to a current account deficit? Countries have to barter manufacture good for, ये पता नहीं क्या ये ऑप्शन है। Goods manufactured for exports lose their competitiveness. Yes, I'll explain why. Number of foreign visitors increase. This will not happen. Visitors decrease. Okay, country more expensive for them. Country more expensive for them. Spending on imported goods is reduced. अगर spending on imported goods is reduced, तो deficit नहीं होगा. Wouldn't contribute to a deficit. Contribute to deficit, ये बल्कि उल्टा काम करेगी, आपका deficit कम करेगी। तो ये गलत है। डी क्यों सही है? डी सही इसलिए है बिकॉज व्हेन यू हैव गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड यूर एक्सपोर्टिंग देम, अगर आपकी इन्फ्लेशन हुई है, दैट मीन्स आपकी कॉस्ट बढ़ी है। फॉर पीपल आउटसाइड द कंट्री दैट आर बाइंग दैट प्रोडक्ट, उनके लिए उसकी प्राइस ज्यादा लगेगी उनको। सो दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज हो गई, डिमांड कम हो गई है, योर एक्सपोर्ट्स लूज देयर कंपेटिटिवनेस। दिस इज एसेंशियली कॉल्ड प्राइस कंपेटिटिवनेस। जिनके एक्सपोर्ट्स सस्ते होते हैं उनकी ज्यादा चीजें ली जाती हैं। चाइना चीजें बहुत सस्ती एक्सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आपको हर ग्लास, हर चीज मेड इन चाइना नजर आती है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव है बहुत ज्यादा, क्योंकि दे आर वेरी प्राइस कंपेटिटिव, वो चीप एक्सपोर्ट्स लगाते हैं। दैट एसेंशियली मीन्स कि आपके हाई इन्फ्लेशन अगर होती तो उनको अपनी एक्सपोर्ट्स की प्राइस बढ़ानी पड़ती, आपको वो महंगे लगते और आप उन्हें कम खरीदना शुरू कर देते। तो आपका एज द कंट्री एक्सपीरियंसिंग इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता। वाई? क्योंकि आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हो जाता। दैट्स वाई। Which feature of a tax is not desirable? All of them. लेकिन let's see what they want us to know. Certainty regarding the payment required. This is very desirable. In case you don't know, countries like US, वहां पे आपको नहीं पता होता कि आपने टैक्स कितना देना। आप गेस करते हो या आप अकाउंटेंट हायर करते हो कि मैंने कितना टैक्स देना है, और फिर IRS आपको उस पर जज करती है कि आपने कितना टैक्स दिया है। अगर आप ऊपर नीचे टैक्स कर लेते हो तो वो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली हैंडल करते हैं। तो यू नीड टू नो एग्जैक्टली हाउ मच टैक्स यू नीड टू पे। बहुत डिजायरेबल बात है, आपको कोई एक्सटर्नल अकाउंटेंट नहीं हायर करना पड़ता, इनकन्वीनियंस नहीं होती। कन्वीनियंट पेमेंट मेथड, दिस इज वेरी डिजायरेबल, इनकन्वीनियंस नहीं अगेन। इक्वल पेमेंट बाय ऑल सिटीजन्स, ओ भाई थिंक अबाउट दिस। अगर एक अमीर बंदा जो $1 million कमा रहा है पर मंथ, एंड मेरे जैसा बंदा जो लेट्स से $10 कमा रहा है पर मंथ, इफ वी आर पेइंग द सेम इन टैक्सेस, दैट इज नॉट डिजायरेबल एट ऑल, दैट इज नॉट इक्वल। सो सिंपली रिच पीपल should pay more, poor people less. Poor people pay less. Flexibility in different economic circumstances, this is very desirable. This is exactly the thing I'm explaining to you कि अमीर को ज्यादा करना चाहिए, गरीब को कम देना चाहिए। Okay, एक second, I'll move to you guys' questions.
सर इन विच ग्रुप विल यू सेंड इट? हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें मैं भेज दूंगा. हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, इफ यू आर नॉट इन देयर तो इंस्टाग्राम पे उस की बायो, इंस्टाग्राम की बायो में उसका लिंक है. लेट मी नो. फिर रीडिंग अली बिन आमिर, आप डी ऑप्शन किसकी रेफर कर रहे थे? आई एम वेरी सॉरी. इफ यू कुड लेट मी नो दैट. आपने लिखा है डी ऑप्शन रेफर्स टू परफेक्ट कंपटीशन. इंस्टाग्राम यूजर नेम इज, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, इकोनोमेट्रिक्स. इकोनोमेट्रिक्स और आगे दो अंडरस्कोर्स हैं अगर नहीं आती आपके पास. एंड इफ यू कैन शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एज वेल, प्लीज डू, ताकि उनकी मदद हो जाए. व्हाट इज डीरेगुलेशन? डीरेगुलेशन इज बेसिकली कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन कम कर रहे होते हो. तो टैक्सेस कम कर देना इज सॉर्ट ऑफ डीरेगुलेशन. तो इट इज एसेंशियली कि गवर्नमेंट कितना इंटरवीन कर रही होती है हर चीज में, गवर्नमेंट कितना हर चीज को कंट्रोल करती है. जैसे आजकल क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है, तो लोग जो है वो पोल्यूशन परमिट्स के पीछे भागते रहते हैं. गवर्नमेंट ने पोल्यूशन परमिट लगाया हुआ है कि इतनी पोल्यूशन एक फर्म कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती, उससे ज्यादा करेगी तो फाइन लगेगा. दैट इज अ रेगुलेशन. वो आपकी फर्म्स को हल्का सा हिंडर करती है, क्योंकि वो फिर शायद चीजें कम बनाएंगे, वो इतना हैप्पी नहीं होंगे उस कंट्री में काम करते हुए. तो दैट इज एसेंशियली डीरेगुलेशन. Many substitutes and low barriers refers to perfect competition. Oh, acha, हाँ, now I got the question. Many substitutes and low barriers, yes. Could you share sort of a mark scheme or answers for all the questions? इसकी mark scheme ना actually थी नहीं, अभी live आप लोगों के सामने बन रही है, तो मैं यही पेपर आप लोगों को WhatsApp पे शेयर कर दूंगा. वहाँ आप लोग पूरी mark scheme देख लीजिएगा, और मुझे कोई अगर क्वेश्चन दोबारा जानना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा. सर इको नहीं होती, साइंसेस बहुत ईजी है, इको काफी मुश्किल है. इस क्वेश्चन पे मैं एंड पे आता हूँ, बिकॉज आई हैव अ पर्सनल एनेक्डोट टू शेयर हियर एज वेल. मुझे 2 सेकंड दें गाइस, आई नीड टू डू समथिंग. इस पेपर के हवाले से ही मेरे पास एक दो क्वेश्चन हैं जो मसला कर रहे हैं. एक दो क्वेश्चन इस पेपर में मिसिंग है, वो मैं ला के बताता हूँ आपको. सो भाई, okay, I found it. Let me share my screen. Okay. Sorry guys for the wait. Question number 20. What is an example of an expansionary monetary policy? Again, पेपर आसान होते हैं अगर आपको डेफिनेशंस आती हैं अपनी, तो यू नो एग्जैक्टली कि एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी इज मनी सप्लाई का इंक्रीज, और ये मनी सप्लाई का इंक्रीज एंड इंटरेस्ट रेट का डिक्रीज. रिडक्शन इन द मनी सप्लाई, नो दिस इज कंट्रैक्शनरी. कॉन्ट्रैक्शनरी, कंट्रैक्शनरी का मतलब होता है कम होना, एक्सपेंशनरी का मतलब होता है एक्सपैंड करना, ज्यादा करना. So reduction in the rate of income tax, yes. Reduction in trade union power, unrelated. So this is unrelated. And reduction in the rate of interest is again, क्या कहते हैं? Oh sorry, मैंने गलत पढ़ लिया. मैंने ये गलत पढ़ लिया. I thought this was in interest rate. Sorry, this is wrong. This is wrong. A reduction in the rate of income tax is an expansionary fiscal policy, जहां पे हम टैक्स और गवर्नमेंट बजट देखते हैं. तो दिस इज आवर आंसर डी.
Sorry. A country has high unemployment and low inflation. To reduce unemployment, the government increases its spending on education and training, causing a budget deficit. What is the most likely effect of this policy on inflation in the short run and long run? Sure. This is an example of expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy में आपकी शॉर्ट रन में जब आप स्पेंडिंग ज्यादा करोगे तो आप आउटपुट एसेंशियली ज्यादा करोगे तो आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी. शॉर्ट रन में आपकी इन्फ्लेशन डिक्रीज नहीं करेगी, इंक्रीज करेगी. तो ये दो तो निकल गए. लॉन्ग रन में आपकी इन्फ्लेशन डिक्रीज करेगी. क्यों? क्योंकि आपके लोग एम्प्लॉयड रह जाएंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ना आपका कोई इस तरह का इशू आएगा कि आपकी कंट्री किसी से कम है, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट्स हो रहे हैं. तो आपकी इन्फ्लेशन लॉन्ग रन में डिक्रीज करेगी क्योंकि आप एज अ कंट्री ओवरऑल बेहतर रह जाओगे. The following information was published by an economy central bank, in which case was real GDP growth highest. अच्छा, यहाँ पे जो आपने पूछा था ना कि adjusted for inflation क्या होता है, यहाँ पे बात आ गई real GDP की. Real GDP is nominal GDP minus rate of inflation. तो दिस इज एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन. आप उसे माइनस कर देते हो आपकी नॉमिनल वैल्यू से. जो भी आपकी ऑन फेस वैल्यू है उसको इन्फ्लेशन की वैल्यू से माइनस कर देना है तो आपकी रियल वैल्यू आ जाएगी. तो ये होती है एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन. अच्छा, तो रेट ऑफ नॉमिनल 2 है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 1 है, तो ये 2 - 1 इज इक्वल टू 1. 7 - 5 इज इक्वल टू 2. 9 - 13 इज इक्वल टू -4. 10 - 11 इज इक्वल टू -1. लोएस्ट थोड़ा सा लो, फिर सबसे, दिस इज द हाईएस्ट. 2 is the highest. Let's see any questions. Definitions की compilation. मुझे आप लोग अगर 1-2 दिन देते हैं तो I will try my best कि मैं सारी compile कर लूँ. लेकिन अभी के लिए unfortunately मेरे पास compiled notes नहीं थे. लेकिन I will try कि मैं at least definitions कर सकूँ. Don't worry. And the table shows the percentage change in some items of the CPI in a year. What will be the most likely consequence of these changes? Energy की प्राइस बढ़ी है 16%, फूड की प्राइस बढ़ी है 18%, हाउसिंग की 10% और ट्रांसपोर्ट की 17% प्राइस बढ़ी है. कॉन्सिक्वेंस क्या इन चेंजेस का? इंटरेस्ट रेट्स विल नीड टू बी रिड्यूस्ड. मतलब एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएंगे आप. एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लगती हैं जब आपकी इन्फ्लेशन कम होती है, जब आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही होती. इकोनॉमी ग्रो कराने के लिए और उसके साथ इन्फ्लेशन आती है. जब आपकी ऑलरेडी इन्फ्लेशन हो रही है तो आप एक्सपेंशनरी पॉलिसीज कभी भी नहीं लगाएंगे. दिस इज रॉन्ग. एक्सपेंशनरी नॉट यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आप कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज लगाते हैं जो मनी सप्लाई कम करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी. या फिस्कल पॉलिसी एक कंट्रैक्शनरी लगा दो जहां पे टैक्स बढ़ेगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी. There will be a more equal distribution of income. Irrelevant. आप इससे गेज ही नहीं कर सकते ये चीज. Irrelevant. There will be cost push inflation. Yes. क्यों होगी? ये एनर्जी किस किस्म की है? ये एनर्जी होगी आपकी बिजली वगैरह. जब बिजली बढ़ जाएगी तो फैक्ट्रीज को ज्यादा लोड बेयर करना पड़ेगा कॉस्ट का उनके एनर्जी बिल्स पे. तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी. तो आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यस, क्योंकि कॉस्ट increases. Demand side inflation नहीं होगी. No. Prices rise कर रही हैं तो demand fall करेगी. Cuba is said to be transitioning towards a market economic system. My favorite system. What is the most likely impact of this on the pattern of employment? Decrease in the proportion of workers employed in the public sector. Yes.
पब्लिक सेक्टर रहेगा ही नहीं, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा जैसे जैसे ट्रांजिशन करते जाएंगे, क्योंकि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर में आपका काम नहीं हो रहा होता. Decrease in the proportion of workers employed in the private sector, not at all. This is contradictory. Contradictory. Decrease in portion of workers employed in small firms. नहीं, tertiary sector बिल्कुल भी नहीं. These are irrelevant. Irrelevant. What is not a component of the HDI? Again, अगर आपका ये रट्टा लगा हुआ है, तो you would know. इसमें education आती है, इनकम पर हेड भी आती है, जीडीपी पर कैपिटा जिसे कहते हैं, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आती है. तो ये तीनों चीजें आती हैं, ये नहीं आती. तो स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसमें एजुकेशन, जीडीपी पर कैपिटा विच इज इनकम पर हेड. जीडीपी पर कैपिटा का मतलब होता है जीडीपी को अगर आप डिवाइड कर दो हर बंदे पे, और लाइफ एक्सपेक्टेंसीज. इन तीनों चीजों में ये चौथी चीज नहीं आती. What could explain the rise in a country's population despite a fall in its birth rate? Let's see. A birth rate that exceeds the death rate. A death rate that exceeds the birth rate. Opposite होगा. Opposite. Population will fall. Pop will fall. Oh, wrong. Net immigration exceeds the birth rate. Immigration क्या होती है? E अगर है immigration means exit. People leave country. जो हम सब यूनी के लिए बाहर चले जाते हैं, we are emigrating. People leave country. तो ई और एग्जिट को याद रख लें. और फिर इमिग्रेशन होती है इन, पीपल एंटर कंट्री. तो इमिग्रेशन को इन से याद रख लें, इमिग्रेशन को एग्जिट से याद रख लें. ई ई आई आई. तो नेट इमिग्रेशन अगर एक्सीड कर रही है बर्थ रेट को, तो वो अगेन फॉल आएगा. और नेट इमिग्रेशन अगर डेथ रेट को भी एक्सीड कर रही है तो अगेन फॉल आएगा. कि जितने लोग मर रहे हैं उससे ज्यादा बाहर, उससे और ज्यादा बाहर जाए जा रहे हैं, तो आपकी कंट्री में रहेगा कौन? तो बर्थ रेट दैट एक्सीड्स द डेथ रेट. 2 लोग मरे हैं, 5 पैदा हो गए हैं, बहुत पॉपुलेशन है भाई मेरी कंट्री की. एनी क्वेश्चंस अभी तक इन दीज लास्ट एमसीक्यूज? What is the basis of specialization at a national level? मैं बात कहता रहा हूँ, efficient use of resources. Diseconomies of scale नहीं. Diseconomies of scale is as production increases, average total cost increases. Increased costs of production आप सिर्फ बेसिस नहीं रखते स्पेशलाइजेशन का. Superior resource allocation, yes. Wide variety of goods produced, no. Increased costs of production के लिए आप सिर्फ उसके लिए आप स्पेशलाइजेशन नहीं करते, आप एक्चुअली उसके लिए करते हो कि आपके रिसोर्सेज बेटर एलोकेट हो. उससे आपकी वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो जाती है, लेकिन इट इज नॉट द प्राइमरी बेसिस फॉर इट. और वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स बीइंग ऑफर्ड भी आप स्पेशलाइजेशन को लिंक नहीं कर सकते. स्पेशलाइजेशन एक सॉलिड गुड में ही होती है वैसे नॉर्मली. या आप ऐसे करते हो कि जिस तरह स्पेशलाइज कर रहे हो, तो मैं 3 प्रोडक्ट्स में अगर पहले कर रहा था, मैं एक में कर लूंगा और 2 अलग अलग रखूंगा. प्रोडक्ट्स तो उतने ही रहेंगे, 3 ही प्रोडक्ट्स रहेंगे, उनके लिए बंदे 3 हो जाएंगे सिवाय एक के, तो गुड्स उतने ही है. The import of a product from country X to country Y has been banned. This is the definition of what we call an embargo, which is a trade ban. कि ये चीज आएगी नहीं. What is this an example of embargo? Quite simple. अगर आपको definition आती है, quota. Quota होता है set limit on import. कि इससे ज्यादा नहीं आएगा. अगर मैंने कोटा रखा हुआ है कि जी 10 माइलो में लूंगा यूएस से, मैं बस उतने ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, तो एम्बार्गो नहीं होता, बैन नहीं होता, लेकिन इट्स सेट लिमिट.
सब्सिडी आपको पता है क्या होती है? सब्सिडी तो गवर्नमेंट ग्रांट होता है, ये तो बिल्कुल नहीं आता यहाँ पे। टैरिफ होता है टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स। अगेन दिस इज नॉट बैनिंग, दिस इज जस्ट टैक्स कि ये इम्पोर्ट है, इस पे एक्स्ट्रा प्राइस लगेगी। दिस इज यूज्ड, बोथ कोटाज एंड टैरिफ्स आर यूज्ड अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, आपने इम्पोर्ट्स पे एक्सपेंडिचर कम करना होता है, तो आप ये लगाते हो। वैसे तो आप एम्बार्गो भी तभी लगाते हो, लेकिन डेफिनेशन ये नहीं है जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। What is necessary to be able to operate at a fixed exchange rate? Fixed exchange rate क्या होता है? Exchange rate मूव ही नहीं करता। कैसे मूव नहीं करता? You buy and sell foreign exchange slash currencies to maintain equilibrium. आपकी एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होती है? वो डिटरमिन होती है आपकी डिमांड से और आपकी सप्लाई से, आपकी करेंसी की। तो अपनी फॉरेन करेंसीज की डिमांड एंड सप्लाई, फॉरेन करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग से आप अपनी डिमांड एंड सप्लाई को एक फिक्स पॉइंट पे रखते हो, बस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में। तो व्हाट इज नेसेसरी टू बी एबल टू ऑपरेट? फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल irrelevant, फ्री ट्रेड बिटवीन ऑल इकोनॉमीज irrelevant, परमिशन ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स, आई मीन थोड़ा बुरा मनाते हैं वो, कुछ बार काफी बुरा मनाते हैं, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी। एंड रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी, यस, बिकॉज दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल जिस पे ये काम करती है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड रेट। This is irrelevant, and these not necessary. These would impact your decision, लेकिन not totally necessary. A developing economy has a surplus on its trade of goods of 75 billion and a deficit of 25 billion. Current account overall balance में। That means कि आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम जो है उनमें कुछ काम चल रहा है। What values for primary and secondary income result in the current account being in balance? अगर हम सिर्फ इन दो को देखें, ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज, तो हमारे पास 75 माइनस 25 का डेफिसिट है, तो 50 बिलियन सरप्लस है हमारे पास। हमने 50 बिलियन को क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन आस्क्स हाउ टू डील with 50 बिलियन सरप्लस, उसको जीरो करना है। तो देखते हैं, हमें चाहिए, वी नीड 50 बिलियन डेफिसिट। लेट्स सी वो कहाँ मिलता है हमें। अगर हमारी डेफिसिट 20 का है, सरप्लस 120 का है, -20 + 120 इज इक्वल टू 100 बिलियन का सरप्लस आ गया। ये तो पाकिस्तान इधर से उधर हो जाए। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। हमें चाहिए 50 बिलियन का डेफिसिट, डेफिसिट ऑफ 30 एंड डेफिसिट ऑफ 70। तो -30 -70 इज इक्वल टू -100 बिलियन का डेफिसिट, या सिर्फ 100 बिलियन का डेफिसिट। तो रॉन्ग अगेन। सरप्लस ऑफ 35 एंड सरप्लस ऑफ 15 बिलियन। तो 35 + 15 इज इक्वल टू 50 बिलियन सरप्लस हो जाएगा ये तो दोबारा, ये भी नहीं चाहिए। सरप्लस ऑफ 40, डेफिसिट ऑफ 90। तो अगर ये देखें आप, 40 - 90 इज इक्वल टू -50 बिलियन का डेफिसिट। Exactly what we need. So this is the correct option. With that, we've concluded our paper.